तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे. Have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not to some other animal? Or why a mango seed form only a mango plant and not any plant? Given that they do, are the offspring identical to their parents, or do they show difference in some of their characteristics? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes so different? These are these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology known as genetics. This subject deals with inheritance as well as the variation of characters from parents to offspring. Inheritance is a process by which characters are passed on from parents to progeny. It is the basis of heredity. Variation is the degree by which progeny differ from their parents. So, first two paragraphs are only talking about the introduction, why an elephant gives birth to an elephant only, and why siblings look so similar or so different. But in the third paragraph, this paragraph is important because here it is saying that what is genetics and what is heredity and what is variation. Basically, genetics is a branch of biology. मतलब कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि हमको ये सब क्वेश्चंस के जैसे कि कोई चीज़ें हम लोग इनहेरिट क्यों करते हैं अपने पेरेंट्स से, कि और कोई वेरिएशन हम लोग में क्यों देखा जाता है, ये सब के क्वेश्चंस हम लोग को जो बताता है वो हमारा क्या है, जेनेटिक्स है. And in the same paragraph it is saying, and in the same paragraph it is saying for variation. तो वेरिएशन, व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स डिफरेंस. मतलब कि जैसे हम पेरेंट्स से कुछ चीज़ इनहेरिट करते हैं, कुछ चीज़ हम लोग का अपने पेरेंट्स से हम लोग वेरिएशन हमारे अंदर होता है. मे बी कि हम लोग जैसे आइज़, नोज़, ये सब के कोई हम लोग में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. दैट इज़ वेरिएशन, दैट इज़ क्रिएटिंग द डिफरेंस, जो कि हमारा कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से अलग है. एंड इनहेरिटेंस स्टैंड्स फॉर कि inheritance means the characters which are passed on from parents to progeny. कि जो ऑलरेडी जो हम लोग जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो ऑलरेडी पास ऑन होता आ रहा है, कि जैसे हमारे पेरेंट्स का कोई कैरेक्टर्स होंगे जो हम लोग के अंदर आ जाते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस. इनहेरिट मीन्स जो हम लोग हेरिट कर रहे हैं, हम लोग जो अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं. और यही हेरिडिटी मीन्स हम लोग जो पास ऑन द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स. वही जैसे वेरिएशन जो डिफरेंस क्रिएशन होता है अपने पेरेंट्स से हम में. अब नाउ ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 800 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. They exploit the variation that were nature present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. For example, through artificial selection domestication from ancestor
wild cows. We have known Indian breeds, example Sahiwal cows in Punjab. We must recognize that through our ancestors knew that the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena. So this paragraph is basically talking about the humans knowledge basically. तो हम लोग के अराउंड 800 to 1000 BC we were knowing that कि inheritance variations are actually existing. मतलब इतने टाइम पहले भी हम लोग को पता था कि कोई जो that the changes which are occurring in us, जो भी चेंजेस हम में हो रहा है वो सब बेसिकली एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कॉज ही है. इसलिए हमने ये वाले पैराग्राफ में साहिवाल काउस के बारे में हमने एक डिस्क्रिप्शन दिया. साहिवाल काउस बहुत इम्पोर्टेंट है कि साहिवाल काउस इन पंजाब एंड हमने उसमें क्या किया था, हमने दैट वी हैव डन आर्टिफिशियल सिलेक्शन. व्हाई वी हैव डन आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन साहिवाल काउ? बिकॉज वी नो दैट इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स आर अकरिंग. मतलब कि कुछ चीज़ें होंगी जो इनहेरिट करेंगी. तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया कि जो कि हमको जो फीचर्स हमको चाहिए थे, तो हमने दो अपोजिट जेंडर को हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हमने एक नया जो भी हमको डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए थे, हमने उसको हमने आर्टिफिशियल सिलेक्ट करके कि हमको ये सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए, और हमने एक अपने ही जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर का हमने वो ऑर्गेनिजम्स वैसा बनाया. एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ साहिवाल काउस इन पंजाब. So in the next paragraph, Mendel laws of inheritance. It was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted a hybridization experiment on garden peas for 7 years, 1856 to 1863, and proposed the laws of inheritance in living organisms. During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problem biology. Okay, so his experiment had a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plant proved that the results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, example tall or dwarf plant, yellow or green seeds. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later years. Later scientists to account for the all diverse nature observation and the complexity inherent in them. So this paragraph is basically talking about Mendel's. तो मिड 19th सेंचुरी में हमारे मेंडल आए थे. ग्रेगर मेंडल इनका नाम था. उन्होंने बेसिकली गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था. किस पे किया था? गार्डन पीस पे. कितने साल तक? 7 ईयर्स. तो 7 ईयर्स फ्रॉम 1856 टू 1863. और उन्होंने क्या प्रपोजल किया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बेसिकली. तो मतलब ग्रेगर मेंडल
7 साल का एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया 1856 to 1863, और उन्होंने समझने की कोशिश की कि इनहेरिटेंस क्या होता, और फिर उन्होंने उससे अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो बेसिकली मेंडल ने किस पे वर्क ऑन किया? पी प्लांट पे। और उनका एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड था, तो सबसे पहले तो कि सब वो मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई साइंटिस्ट ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कि मैथ्स इन बायो किया। फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ इट वॉज मेंडल। सेकेंड वॉज लार्ज सैम्पलिंग साइज, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज सैम्पलिंग साइज ही यूज, मतलब ज़्यादा सैम्पल उन्होंने कलेक्ट किया। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड दैट कि ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होने से बस एक एज अ हाइपोथेटिकल पे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक एज अ एश्योरिटी के साथ दिखाया कि नो इट एग्जिस्ट। तो लार्ज सैम्पलिंग साइज गिव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेटा दैट ही कलेक्टेड, कि हाँ ऐसा तो कंफर्मेशन के साथ है, नॉट एज अ हाइपोथेटिकल और एज अ कि बस बोल दिए, ऐसा नहीं था। उन्होंने कंफर्मेशन के साथ लॉस थी। इसी का असर्शन रीज़न था द कंफर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंसर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस rather than अनसस्टेनेटेड आइडियाज़। मतलब ऐसा कुछ भी बस अनलॉजिकल थिंग्स के हिसाब से नहीं बोले, उन्होंने कंफर्मेशन करने के लिए टेस्ट प्लांट्स व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट प्लांट? कि रिसेसिव कोई भी जनरेशन को अगर हम उसके रिसेसिव पेरेंट्स हम लोग क्रॉस कराते हैं, दैट इज़ टेस्ट प्लांट। तो उन्होंने वैसे टेस्टिंग करके हमको कंफर्मेशन दिया। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स। मतलब उन्होंने ऐसा लिया कि 2 अपोजिंग ट्रेट्स थे, जैसे टॉल ड्वार्फ हो गया, फ्लावर के पोजीशन में एक्सेल टर्मिनल हो गया, फिर सीड कलर येलो ग्रीन। मतलब 5.1 फिगर में जो भी पेयर्स हैं वो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बेसिस पे, जो कि अपोजिट कैरेक्टर्स थे बेसिकली। जैसे एक टॉल है तो एक डॉफ हो गया, तो एक ग्रीन है तो एक येलो, अपोजिट फुली अपोजिट ट्रेट्स, उस पे के बेसिस पे उन्होंने दिया। Now moving forward, Mendel conducted such artificial pollination, cross-pollination experiment using several true breeding pea lines. A true breeding line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows a stable trait inheritance and expression for several generations. तो मेंडल जी ने क्या किया कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब उन्होंने क्या किया कि मतलब जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया करवाया। जैसे कि अगर कोई टॉल प्लांट है, टॉल पी प्लांट, तो दैट was true breeding plant that is having characteristic of tall, और उसको क्रॉस कर दिया ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ऑफ डॉर्फ के साथ। और ट्रू मतलब क्या होता है यहाँ पे? ट्रू व्हाट मीन्स ट्रू? अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन continuous self pollination shows a stable inheritance and expression for 7 generation। तो मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेट बहुत सदियों से चलता आ रहा है वही ट्रेट जो स्टेबल है, मतलब अगर टॉल, सपोज एग्जांपल अगर टॉल ले लेते हैं, तो टॉल इज़, अगर ट्रू टॉल ब्रीडिंग प्लांट ले तो वो बहुत पहले से टॉल ही दिखाया जाएगा। हर जनरेशन में उस प्लांट की प्रोजेनी टॉल, फिर हम उसको क्रॉस कर देंगे, फिर टॉल, फिर इसको क्रॉस कर देंगे, अगेन टॉल, अगेन टॉल, अगेन टॉल। मतलब कि उसकी कोई भी हम लोग का उसकी प्रोजेनी
पहले से टॉल होती आई है, एंड दैट इज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। मतलब जब जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे टॉल को ड्रॉप के साथ, ऑफ कोर्स F1 प्रोजेनी में तो सेम आ जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे, बट F2 में फिर वेरिएशन दिखा, इसलिए हम लोग सेल्फ कॉन्टिन्यूस, दैट इज़ कि अगर मान लो सपोज टी है, कोई प्लांट है, फिर हमने उसी का क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कि उसी का ट्रेट जो वही प्लांट है उसी को फिर से उसी के साथ, मीन्स अगर मान लो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें एक फ्लावर में 2 सेक्स प्रेजेंट है, तो उसी को फिर से किए, फिर इसका फिर प्लांट हुआ, फिर उसी को फिर से किए, यानी टी बनेगा तो हमेशा फिर टी बनेगा। ये सपोज फर्स्ट प्रोजेनी है, फिर ये बना, ये पेरेंट्स थे, फिर ये इसका प्रोजेनी बना, ये प्रोजेनी को फिर से क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, यानी टी करा दिया गया, फिर इसका जो प्रोजेनी बनेगा फिर वो टी बनेगा, फिर इसके बाद हम लोग फिर से टी करेंगे, फिर अगेन टी एंड इट विल गो ऑन। तो फ्रॉम हेयर यू कैन अंडरस्टैंड दैट what it means. तो अब Mendel selected 14 true breeding plant variation as pairs which were similar except for one character of contrasting traits. One of the contrasting traits selected was smooth or wrinkled seed, yellow or green seed inflated or constricted green or yellow pods, and tall and dwarf plant. Okay, तो कितना उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स उन्होंने लिए, तो दैट वाज 14 उन्होंने लिया, एंड 14 उन्होंने लिया तो वो उसी पे काम किया। और वो कौन कौन से ट्रेट्स थे, दैट इज़ डिस्कस्ड ओवर हेयर इन फिगर 5.1। तो ये सारे ट्रेट्स थे, एंड इन द टेबल फॉर्म इट्स दिस। तो टोटल इन्होंने ऐसे मतलब इन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन 2023। तो यहाँ पे 2023 में अब बहुत बार आए हुए सवाल है कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो इम्पोर्टेंट है 7 पेयर्स थे इज इक्वल टू 14 ट्रेट्स। अगर इफ समवन आस्क कि कितने थे, तो 7 पेयर्स एंड 14 ट्रेट्स। ओके, तो ये टेबल है, इम्पोर्टेंट टेबल है। एंड नाउ कमिंग टू 5.2 inheritance of 1 gene. Let us take the example of one such a hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of 1 gene. He collected the seed produced as a result of his cross and grew them to generate plants of his hybrid generation. This generation is also known as filial 1 progeny or F1. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, like one of his parents. None were dwarf. He made similar observation for the other plant pairs of traits. He found that F1 always resembled either one of the parents, and that the trait of other parents was not seen in them. This paragraph, ये जो पूरा पैराग्राफ का एक समरी है कि जो मेंडल थे वो 1 मिनट, तो मेंडल जो थे वो सपोज टॉल टी है, मतलब दिस इज फॉर टॉल and this is for dwarf. ये जगह साइंटिफिकली हर जगह ये यूज़ होता है नोटेशन। तो इन्होंने क्या किया कि टी दैट इज टॉल into
TT, that is dwarf, resulted into TT. तो इन्होंने देखा कि इनकी जो प्रोजेनी थी वो सारी टॉल थी, बिकॉज टॉल इज़ डोमिनेंट। टॉल इज़ ऊपर वाले टेबल में ही जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है टॉल और डॉफ में, डोमिनेंट यानी कि जब दो हेट्रोजीनियस, जैसे टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दो अलग अलग ट्रेड्स है, पर उसमें कौन डोमिनेंट करेगा, दैट इज़ कि कौन ज़्यादा वाइल्ड कैरेक्टर है, दैट इज़ कैपिटल टी, और वही आपका एक्सप्रेस करेगा। इन लेटर चैप्टर यू विल ऑल्सो नो दैट डोमिनेंस जो है वो एक ऑटोनॉमस नहीं है कि मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बट येस ओवर हेयर इट इज़ कि हाँ, अगर कैपिटल और टी और स्मॉल टी आएगा तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, जो फिजिकली आराम से दिख जाएगा, दैट विल बी टॉल। ये प्लांट आपका कैसा होगा, आपका ये प्लांट लंबा होगा। ये हुआ आपका F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। ही ऑब्जर्व व्हाट, दैट all plants are tall, all plants are tall of this progeny। अब इन्होंने क्या किया कि now this F1 जनरेशन को उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, ओके, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने किया। तो सेल्फ पॉलिनेशन इसी का जो जेनेटिक है उसी का एकदम सेम उन्होंने किया, और इन्होंने देखा कि सम वर ड्वार्फ एंड सम वर टॉल। तो अगर हम इसका बनाएं, अगर आपको जानना है कि कैसे हम लोग बनाते, तो मैं इसको बाद में अपने वीडियो में बता दूँगी कि कैसे हम लोग ये सब हम लोग बनाते हैं, बट ये वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी। ठीक, तो ये हमारा टॉल है। मैं टॉल को सर्कल कर रही हूँ विद दिस कलर पर्पल। तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इज़ टॉल और ये स्मॉल टी इज़ डॉफ, तो इसलिए। और ये जो लाइट ब्लू से है स्मॉल टी, दिस इज़ डॉफ, और ये जो तीन कैरेक्टर्स हैं वो हमारा टॉल प्लांट है। तो मेंडल ने क्या देखा कि F2 जनरेशन्स में कोई हमारा डॉफ भी है, कोई हमारा टॉल भी है। तो मेंडल then self-pollinated the F1 generation. To his surprise, that the filial 2 generation, some of the offspring were dwarf. The character that was not seen in F1 generation was now expressed. जैसे जो हमारा टॉल ही बस एक्सप्रेस होता है F1 में, dwarf नहीं होता, वो हमारा एक्सप्रेस हो गया। The proportion of the plant that were dwarf were 1/4 of the F2, while 3/4 of the F2 plant were tall. The tall and the dwarf trait were identical to their parental type and did not show any blending. That is, all the offspring were either tall or dwarf. None were in between of the height. Very important. ये बताता है कि हमारे जो कैरेक्टर्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है, यानी ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट कुछ हो गया कि एक टॉल था तो एक ड्वार्फ था तो एक मिडिल हाइट नहीं आए, टॉल हुए या तो फिर ड्वार्फ है, यही है। और जो उसका रेशियो है, दैट इज़ जो हमारे F2 जनरेशन में हमको मिले थे, दैट इज़ T कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t अगेन कैपिटल T। तो यही हमारा ड्वार्फ है, दैट इज़ 1/4। ये भी हमारा टॉल था, ये भी हमारा टॉल है, ये भी हमारा टॉल है, यानी 3 of the 4 कैरेक्टर्स आर टॉल, हेंस इन सबको मिला के 3/4 है। एंड टॉल इज़ ओनली
only and only 1/4, जो ये पैराग्राफ में बोल रहा हूँ. Similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the painter trait was experienced in the F1 generation. मतलब कि एक ही पेंटर हमारे एक्सप्रेस हुए थे, while at the F2 generation both the characters were expressed in the proportion 3:1. Of course 3/4 ratio to 1/4 अगर हम लोग देखें तो ये this for is tall and this is for dwarf, D for dwarf. तो इसका हम रेशियो देखें then we will get 3:1. और इसमें या तो कोई टॉल हो रहा था या तो कोई ड्रॉफ हो रहा था. Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generation. He called these things as factors. Today we known as genes. इसी को आज हम लोग जीन्स कहते हैं, जो उस समय मेंडल ने फैक्टर्स कहा था. बेसिकली व्हाट इज जीन, जो हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, कि जो कि वो पास ऑन हो रहा है. देयरफॉर genes therefore are the units of inheritance. They contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Genes which code for particular contrasting traits are known as allele. That is, they are slightly different form of the same gene. That is, जो हमारे alleles है they are slight different. जैसे allele में सपोज इसमें एक जीन्स है, उन्हीं को हम फैक्टर्स का, इन सब में भी मैंने हम डिफरेंस बता सकते हैं. तो बेसिकली जीन्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ जाए. मतलब सपोज दिस पेरेंट इज़ ग्रीन सो द चाइल्ड इज़ ऑल्सो ग्रीन. मतलब जो ट्रेट ऑफ कलर है, मतलब सपोज पेरेंट्स का कलर स्किन है ग्रीन, तो ये प्रोजेनी का भी स्किन है कलर ग्रीन. तो ये कलर का जो इनहेरिटेंस है कि स्किन का कलर का भी कोई इनहेरिटेंस है कि अच्छा कौन सा कलर का होगा, तो वो बताने के लिए वो एक जीन होता है. एंड सपोज कि कोई बच्चा इसी येलो कलर का, ये भी इसी का बच्चा येलो कलर का और ये भी ग्रीन कलर का. तो बेसिकली जो स्किन कलर है वो हमारा जीन है, और जो येलो और ग्रीन है डैट इज़ थोड़ा सा डिफरेंस है कलर में, है तो स्किन कलर दोनों, पर जो डिफरेंस है इन स्किन कलर इज़ allele. This is what they are saying. If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed as the F1 generation, the small alphabet for the other trait. For example, in this case of this height, T is used for the tall trait and small t for the dwarf. And the capital T and small t are the alleles of each other. Means कि जो हाइट को जो गवर्न करेगा, कि जो हमारा जो ट्रेट हमारे जैसे जो पेरेंट्स है मिलेंगे, कि हमारा क्या जो बेसिकली जो हमारा जो इनहेरिटेंस करने में हेल्प कर रहा है कि हमारा हाइट कैसा होगा, दैट इज़ जीन. और कोई हो सकता है कि आप टॉल होंगे तो आपका भाई या बहन टॉल भी हो सकता है या फिर ड्वार्फ भी हो सकता है. तो बेसिकली दे आर सेइंग कि एलील डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं. Hence, in plant, the pair of allele for height would be TT capital T small t or small t small t. Mendel also proposed that in a true breeding plant, tall or dwarf variety, the allelic pair of genes for height are identical or homogeneous. Capital T and small t respectively. Capital T and small t are called genotype of the plant, while the descriptive terms tall, dwarf are the phenotype. Genotype यानी genetic makeup, phenotype यानी phenotype.
मतलब कि जो आप आराम से फिजिकली आप देख सकते हैं कि अच्छा ये आदमी टॉल है या ड्रॉफ है, ये पी प्लांट बड़ा है या छोटा है, दैट इज़ फिनोटाइप। वो कैसा दिखता है। जीनोटाइप में जो जेनेटिकली ऑर्डर, जो जेनेटिकली उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो हम टॉल ड्रॉफ हम लोग फिनोटाइप हम कंसिडर करेंगे। एंड जो जीन्स जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, these are all genes. As Mentor found that the phenotype of the F1 genotype, F1 heterozygote T capital T small t, to be exactly like that capital T parent in appearance. He proposed that in a pair of dissimilar factor, one dominates the other and hence is called dominant factor, while the other factor is recessive. In this case, capital T is dominant over small t, that is recessive. He observed identical behavior for all the characters trait present that he studied. It is convenient and logical to use a capital T and lowercase of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness. बेसिकली इसके नीचे वाला तो ऐसा इंस्ट्रक्शंस है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, पर जो ये जो पैराग्राफ है, इट मीन्स बेसिकली दिस पैराग्राफ आई एम कंसिडरिंग, तो दिस मीन्स कि जो कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम हेट्रोजाइगोट भी कहते हैं, क्योंकि दो अलग अलग डिसिमिलर है कि एक स्मॉल टी है एक बड़ा टी है। तो वो दोनों अपीयरेंस के मामले में तो टॉल, बट जेनेटिक तो डिफरेंट, एक में होमोजाइगोट है, दैट इज दोनों कैपिटल टी है, और एक में कैपिटल टी और स्मॉल टी। नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड? नाउ इन दिस पैराग्राफ इट इज only talking about the monozygote and monohybrid cross। क्या होता है monohybrid cross? यानी mono means सिंगल ट्रेड का हम लोग देखने को कहेंगे, चाहे वो ड्रॉफ हो या टॉप, इट डजंट मीन, बट इट्स कैरेक्टर ओनली। From the observation that the recessive parent that is expressed without any blending in F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the allele of the parent pairs separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. This segregation of allele is a random process, and so there is 50% chance of gamete transfer either allele, as has been verified by the results of the crossing. In this way, the gametes of the tall T plant have the allele capital T, and the gamete of the dwarf small t plant have the allele T. During fertilization, the two alleles capital T from one parent, say through the pollen, and a small t from the other parent, then through the egg, are united to produce gametes that have one capital T allele and one small t. In other words, the hybrid capital T small t. Since these hybrids contain alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous. And then it's talking about Punnett square के बारे में बता रहे। जो Punnett square, ये वाला जो डायग्राम है, ये पनेट स्क्वायर है, जो हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम है रिजिनाल्ड सी पनेट। वो जेनेटिस्ट थे, तो वो बताते कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है आउटकम कि अगर हम लोग पेरेंट्स का क्रॉसिंग करें। तो बेसिकली ऊपर वाले पैराग्राफ में इट ओनली मीन्स कि इफ़ वन पेरेंट इज टॉल, दिस इज टॉल पेरेंट, and blue shows male. This is mother. She is also heterozygous. Dodalak trait. Progeny found can be capital T, small t, capital T,
small t, small t. Only 3 genetical make form can be possible from this. अच्छा, so here you can see that कि अगर ये जो ये एक क्या है, एक अलील है, ये क्या है, दूसरा अलील है, ये मदर का पहला अलील है, ये एक उसका दूसरा अलील है, मतलब जेनेटिक फॉर्म तो वही है पर अलील है। तो ये टॉल है, ड्रॉफ है, टॉल है, ड्रॉफ का अलील है। ठीक, तो क्या हम देख रहे हैं कि सेग्रीगेट जब प्रोजेनी जब बन रही है तो सेग्रीगेशन हो रहा है कि सपोज ये जो कैपिटल टी इसके फादर से आया होगा और स्मॉल टी इसके मदर से आया होगा। सिमिलरली कैपिटल टी सपोज इसके इधर से आया होगा, मदर से आया होगा। सपोज इसमें इससे आया होगा, इसमें इसकी मदर से आया होगा। तो यानी कि जब ज़ायगोट बन रहा है तो एक अलील उसकी एक पेरेंट से आता है, या फिर जब गेमीट्स बनते हैं तो जो कैरेक्टर्स होते हैं सेग्रीगेट हो जाता है, क्योंकि ज़ायगोट में कौन कौन कैरेक्टर जा सकेंगे। अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फादर तो एक गैमीट ये बनेगा, सेकेंड गैमीट विल बी फॉर्म दिस, एंड इन मदर सिमिलरली इट विल फॉर्म दिस। और जब क्रॉसिंग होगा देन कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तब ऐसे प्रोजेनी बनेंगे। पर जो गेमीट्स है, दीज आर गेमीट्स, तो ये तो सेग्रीगेट हो गए। तो पनेट शोज ओके, तो उसी के बारे में पूरा पैराग्राफ है। एंड हियर इज द कैलकुलेशन। तो Mendel itself pollinated the F2 plant and found that the dwarf F2 plant continued to generate dwarf plant in F3 and F4. He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous TT. Okay, what do you think he would have got that he had self pollinated a F2 plant? ये आप करके देख सकते हो, क्रॉस कर लो F2 प्लांट को। F2 प्लांट क्या कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F2 प्लांट थे। इसका सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो जो आउटकम होगा यू कैन फाइंड आउट। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज़ क्लियर दैट दो द जेनेटिक ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait. It is not possible to know that the genotype composition, that is for example whether a plant is tall from F1 or F2 has capital T or small t composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a plant at F2, Mendel crossed the tall plant from the F2 with a dwarf plant. This he called test cross. So basically पूरा पैराग्राफ एक ही चीज़ बता रहा हूँ। From seeing the phenotype की प्लांट टॉल होगा, ये भी टॉल हम कह सकते हैं, टॉल तो हम इसको भी कह सकते हैं। How we will know that which is the genetic? By seeing the appearance that these are tall, we can't say that कि ये टॉल है तो इसका जेनेटिक मेकअप यही होगा या फिर यही होगा, we can't say. So इस चीज़ का पता लगाने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया। बेसिकली व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? सो टेस्ट क्रॉस इज नथिंग बट आपको एक पेरेंट्स लो, सपोज मैं ये लेती हूँ कि कोई पी प्लांट टॉल है, मुझे पता लगाना है कि ये हेट्रोजाइगस होगा, होमोजाइगस था, तो मैं इसका टेस्ट क्रॉस यानी वही ट्रेट टॉल का ही हम लोग उसके रिसेसिव पेरेंट दैट इज़ स्मॉल टी ये रिसेसिव पेरेंट्स हैं, हम उसका क्रॉस उससे करेंगे जिसका हमको पता लगाना। हमको क्या मिलेगा?
प्रोजेनी, एक तो हमको फिर टॉल प्लांट मिलेगा और हमें एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा जेनेटिक मेकअप था, दैट दिस वाज कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हमारा था। बट अगर हम लोग व्हाट इफ कि अगर ये दोनों होमोजाइगोट था और हम इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं, व्हाट वी विल गेट, अगेन टॉल प्लांट। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि अगर कोई हेट्रोजाइगोट है, सपोज दिस मतलब होमोजाइगोट, तो होमोजाइगोट का अगर हम टेस्ट क्रॉस करें उसके रिसेसिव पेरेंट्स का, फिर हमें फिर से हमें टॉल प्लांट मिलेगा। बट अगर हम लोग कोई हेट्रोजाइगोट से हम लोग क्रॉस करें विद द टेस्ट प्लांट, वी विल गेट one tall plant and one small plant. यही पनेट स्क्वायर के में दिया हुआ है। पनेट स्क्वायर का वीडियो बाद में मैं अपलोड करूँगी। Based on his observation of monohybrid cross, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid cross. Today, these rules are called principles or laws of inheritance. The first law or law of dominance and the second law or law of segregation. First law इस सबके इन्फ्लुएंसेस से मेंडल ने दो लॉ जनरेट किए, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। The first law of dominance. Characters are controlled by discrete units called factors. Second, factors occur in pairs. Third, in a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates the other system. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid in F1 and the expression of both in F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. ओके तो बेसिकली कोई भी कैरेक्टर कैसे कंट्रोल होगा, फैक्टर्स। आज हम लोग इसी फैक्टर को हम जीन कहते हैं। कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, स्किन कलर या फिर हाइट ही ले लेते हैं ऑफ पी प्लान। तो कोई टॉल होगा, कोई ड्वार्फ होगा, दैट इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय द फैक्टर्स। जीन पे डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स कि अभी हमने देखा था कोई एक कैपिटल टी को स्मॉल टी हुई, स्मॉल टी होगा या फिर कैपिटल टी होगा। तो ये सब क्या है, पेयर्स में तो अकरिंग है। ये वन पेयर है, ये वन पेयर है, ये वन पेयर। ऐसा तो नहीं है कि इस कैपिटल टी है बस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, नो, इट ऑलवेज अकर इन दिस। अगर कोई डिससिमिलर पेयर, डिससिमिलर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कौन डोमिनेट करेगा, जो वही कैरेक्टर आपको दिखेगा एक हेट्रोजाइगस में जो ट्रेट आपका डोमिनेंट है, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी इज नॉट डोमिनेंट। Now law of segregation. This law is based on the fact that the allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation. Though one of these is not seen in the F1 generation. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or allele of a pair segregate from each other such that the gamete receive only one of the two characters. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. तो बेसिकली व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि अगर मान लो कि जैसे हमने देखा कि F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में डॉफ कैरेक्टर भी आ गए और टॉल भी आ गए, बट F1 में ओनली टॉल कैरेक्टर वाज सीन। बट ये कैसे, वहाँ पे F1 में टॉल दिखे और F2 में ड्वार्फ भी आ गए। दिस इज द आंसर कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कैरेक्टर इस तरह सेग्रीगेट होते हैं, मतलब ब्लेंड नहीं होते कि कोई इंटरमीडिएट साइज आ गए, नो, सेग्रीगेट होते हैं। गेमीट्स इस तरह अलग होते हैं, उस तरह
अलग होते हैं गेमीट्स के वक्त कि ब्लेंड नहीं होते हैं, और जो हेट्रोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसका गैमेट्स बनेगा तो एक गैमेट को एक कैपिटल टी मिलेगा और दूसरे गैमेट को स्मॉल टी मिलेगा, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। वैसे अगर मान लो कोई ग्रीन कलर है और कोई येलो कलर है, so वो ग्रीन कलर is denoted by Y and it's dominant Y. Suppose green is dominant and it is denoted by capital G and Y is small g, क्योंकि रिसेस से कौन स्मॉल से दिखाएंगे, तो इसका गेमिट्स बनेंगे तो कैपिटल G एक में होगा, स्मॉल g एक में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी सेम चीज़ है, बस इसमें अंतर है कि अभी तक हमने देखा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है दैट इज़ टॉल हाइट, वो हमारा डोमिनेंट है, तो यही हमारा एक्सप्रेस करेगा। ये प्लांट आपका कैसे दिखेगा, फिनोटाइप है टॉल, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यहाँ पे कौन सा ये इम्पोर्टेंट है, बस लाइन स्नैपड्रैगन और एंटी हेरेनम स्पीशीज़, इसे डॉग फ्लावर कहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और इसकी में जो एक्सप्लेनेशन है आई एम एक्सप्लेनिंग, तो तो यहाँ पे दिस इज तो उसके जो पेरेंट्स हैं या तो फिर रेड कलर के होंगे, लेट मी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। देख सकते हैं या तो इसके जो पेरेंट्स पी फॉर पेरेंट या तो रेड कलर के हैं या तो वाइट कलर के हैं, तो इसकी प्रोजेनी बन गई कैपिटल आर स्मॉल आर, बिकॉज पेरेंट्स इज कैपिटल स्मॉल, तो ये हमारा प्रोजेनी बनना है। तो इसके हिसाब से जो डोमिनेंट कैरेक्टर जो था हमारा, ये हमारा रेड था डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव था, तो बनना तो चाहिए था रेड कलर अभी तक जैसे हमने पढ़ा, बट यहाँ पे क्या बन गया, पिंक कलर के फ्लावर बन गए, दैट इज दिस पिंक फ्लावर। हाउ दिस हैपन, यानी यहाँ पे वो डोमिनेंस नहीं देखे, वो फुल्ली डोमिनेंस वाला जो हमने अभी तक पढ़ रहे थे कि जो मेन डोमिनेंट होंगे वही हमारे कंट्रोल करेंगे इन हेट्रोजाइगस नो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अगर मान लो दोनों पेरेंट्स आते हैं उसकी क्रॉसिंग करते हैं तो कोई यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होगा, यहाँ पे डोमिनेंसी का कोई चीज़ ही नहीं है, दोनों डोमिनेंट रहेंगे या फिर दोनों नहीं रहेंगे। ये आप समझिए कि अगर मान लो दोनों एग्जैक्टली डोमिनेंस, कि अगर मान लो दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपने कैरेक्टर दिखाएंगे, या तो ऐसा नहीं होगा कि अगर ऐसा नहीं कि रेड भी दिखाएगा वाइट भी दिखाएगा, मतलब कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर की डोमिनेंसी नहीं दिखाई जाएगी, मतलब दोनों कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा ही नहीं। अगर कोई डोमिनेंट रहता तो सपोज रेड रहता तो रेड कलर का फ्लावर होता, बट ऐसा नहीं, अगर दोनों डोमिनेंट रहते तो कहीं रेड पैचेस मिलते कहीं वाइट पैचेस मिलते, बट इट्स नॉट द फुली डोमिनेंस, दोनों डोमिनेंट नहीं है, दोनों डोमिनेंस नहीं है। तो मतलब दोनों का कोई मिक्सचर ही हमारे यहाँ पे बना के एक नया स्पीशीज़ बना दिया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, कि कोई भी यहाँ पे डोमिनेंस से कोई किया ही नहीं। अगर डोमिनेंस करता तभी ना उसका कैरेक्टर देख सके, तो दोनों डोमिनेंस करते जैसे हम पढ़ेंगे AB ब्लड ग्रुप, तो वहाँ पे दोनों
डोमिनेंस होता तो दोनों के कैरेक्टर दिखते, बट यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखा, एक नया ही स्पीशीज जनरेट हो गया। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे कैसे ही एक और एग्जाम्पल है। Okay, let us take an example of a gene that contain the information for producing an enzyme. Now there are two copies of this gene. There are two allelic forms. Let us assume, as is more common, that the more normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate. Theoretically, the modified allele could be responsible for the production of the normal or less efficient enzyme, or second, a non-functional enzyme, or third, no enzyme at all. In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele, that it will produce the same phenotype trait in the result of transformation of substrate S. Such equivalent alleles are very common, but if the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. The phenotype trait will only depend on the function of the unmodified allele. The unmodified allele functioning allele, which represent the original phenotype, is the dominant and the modified is the recessive. Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is formed. तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी तो पूछी नहीं गई है, बट इस तो ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। किसके फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा? जो भी आपका यहाँ पे एंजाइम पे है, तो जो अनमॉडिफाइड है, जो आपको मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं है, उसी पे डिपेंड करेगा कि वही डोमिनेंट होने वाला है। वाई? बिकॉज इट इज़ द ओनली डोमिनेंट। और जो मॉडिफाइड है वो क्या है? वो आपके रिसेसिव है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लो कोई एक एंजाइम कोई प्लांट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज ई और स्मॉल ई, ओके, तो ये जो है वो हमारा ये जो भी प्रोजेनी वो हमारा नॉन फंक्शनल हुआ। व्हाट इट मीन नॉन फंक्शनल? और जो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट हो सकता है हमारा ये होगा। ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस वाला एग्जांपल है, और ये हमारा जो थर्ड वाला जो बोला नो एंजाइम एट ऑल, वो हमारा स्मॉल ही का बात कर रहा। तो यही है जो एंजाइम हमारा नहीं प्रोड्यूस करेंगे और नॉन फंक्शनल है कि एंजाइम बनाएगा बट वो काम नहीं करेगा। मतलब सबसे तो हट की, या तो ये दो केस बनता है, या तो एंजाइम बनाता ही नहीं या तो फिर बनाता, पर ये हमारा इंटरमीडिएट आ गया कि बनाएगा एंजाइम पर ये काम नहीं करेगा। तो ये भी हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, क्योंकि इसके पेरेंट्स दो तरह के थे, या तो एंजाइम बनाते ही नहीं थे या तो फिर बनाते थे एंजाइम। बट इसके प्रोजेनी में एक ऐसा भी ट्रेट आया जो बनाता तो है एंजाइम बट वो नॉन फंक्शनल है। बट वो कैसा दिखेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका डोमिनेंट कैरेक्टर कैसा, जो अनमॉडिफाइड, क्योंकि अनमॉडिफाइड ही हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। डोमिनेंस, को डोमिनेंस की बात है तो को डोमिनेंस इज बेसिकली जब हमारा दोनों अलील हमारा डोमिनेंट है। ऊपर वाले में कि दोनों डोमिनेंट ही नहीं थे, कोई तीसरा एक नया ही अलग जन्म ले रहा था, कोई इनहेरिट। बट यहाँ पे क्या है कि को डोमिनेंस में कि दोनों अलील हमारे डोमिनेंट है। बेसिकली यहाँ पे हमारे 3 अलील होते हैं ब्लड ग्रुप में, तो इसमें भी हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली BG स्टैंड्स मैं डिनोट कर रही हूँ ब्लड ग्रुप के। ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स होते हैं, इससे ऐसे मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जाम्पल कहते हैं, क्योंकि एक अलील नहीं, इसके 3 एलील इसको गवर्न कर रहे हैं, IA, IB एंड I। ओके, ये है, ये दो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, क्योंकि ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है स्मॉल आई,
और ये शुगर प्रोड्यूस कर रहा है पी टाइप और ये ए टाइप का प्रोड्यूस कर, पर ये वाला कोई शुगर नहीं कर रहा है, इसे क्या है रिसेसिव, ये क्या है डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है। ओके, तो एज फार एज वी हैव स्टडी कि जो डोमिनेंट होगा वो या तो फिर ऐसे आप लिख सकते हो, ये ए ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी ए है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर दिखेगा। सिमिलर फॉर बी, ये बी है। दो पॉसिबल ट्रेट का हम लोग जीनोटाइप लिख सकते, दो तरह के हम लोग जीनोटाइप्स, पर हम लोग ओ ब्लड ग्रुप वाले ये होते हैं, कोई आप में से भी होगा ओ ब्लड ग्रुप, बेसिकली इसमें कोई भी डोमिनेंस नहीं होता, और जो जो ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे वो ऐसे होंगे, मतलब एक पे ए शुगर का होगा, एक पे बी शुगर का होगा। चलो, तो बेसिकली क्या है कि जो आई ए है और आई वाला है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ए टाइप ऑफ शुगर हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, और जो आई बी वाला है हमारा बी टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। आई वाला जो ओ है वो आपका कोई शुगर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, और जो आई ए है और आई बी है वो आपका ए टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस कर रहा है और बी टाइप ऑफ शुगर भी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो ये कैसा एग्जांपल, यानी दोनों कोवलेंट पैटर्न है, मतलब ए तो था ही बी भी था, पर यहाँ पे जो प्रोजेनी बन रहा है उसमें दोनों तरह के, तो इसे कोडोमिनेंट दोनों डोमिनेंस करेंगे उसके कैरेक्टर्स में, यानी ए वाला भी उतना ही वैल्यूज़ का होगा जितना बी का होगा, यहाँ पे कोई रिसेसिव है ही नहीं। ओके, ये था। तो बेसिकली अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि कैसे सपोज़ ए ब्लड ग्रुप वाला कैसे बने होंगे, बहुत क्वेश्चन आते इससे। तो सपोज़ फादर एंड मदर, फादर इज सपोज़ ए ब्लड ग्रुप एंड मदर इज सपोज़ बी ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप तो हम लोग टू टाइप से लिख सकते हैं, तो आई लिखेंगे। सपोज़ ये दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस मीन्स ये सब वाले पार्ट देखेंगे हम लोग। ओके, हम दोनों को क्रॉस करेंगे, प्रोजेनी किस तरह के बनेंगे, या तो आई ए आई बी, आई ए आई बी आई और आई, ये तरह के पेरेंट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, सपोज़ फर्स्ट टाइम ये इसका गेमिट ये भी हो सके, ये बनेगा दैट इज कोडोमिनेंस बनेगा, हो सकता है फादर से आई ए आ जाए, मदर से स्मॉल आई बन के ये हमारा बन जाए, और सपोज़ फादर से स्मॉल आई आ जाए और मदर से कैपिटल बी वाला आ जाए तो हमारा ये बन जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की स्मॉल आई बन के हमारा ओ ब्लड ग्रुप बन जाए। ठीक, तो ये अगले पैराग्राफ में यही है। डू यू रिगार्ड द एग्जांपल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म एक जीन है ब्लड ग्रुप वाला, उसके 3 एलील है, आई ए आई बी एंड आई, जो हमारा वो गवर्न कर रहा है ब्लड ग्रुप। Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं, हेंस पॉपुलेशन में पाया जा सकता है। Similar example is for starch grain. स्टार्च ग्रेन का एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। So occasionally a single gene producing may produce more than one effect. For example,
Starch synthesis in pea plant is controlled by one gene. It has two alleles, capital B and small b. Starch is synthesized effectively by BB homozygous and therefore large starch grain are produced. In contrast, small b homozygous have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grain. After maturation of the seeds, capital B are round and the small b are wrinkled. Heterozygote produce round seed and of intermediate size. So if starch grain is considered as the phenotype, then from this the allele show incomplete dominance. Okay. तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ये एक ग्रेन है and this is second grain and we will label this B and this is small b. Okay. इसमें दो तरह की बात हम लोग करेंगे. एक तो राउंड होगा या फिर व्रिंकल होगा. ये तो वो देखने की कंडीशन की बात हम लोग करेंगे. और एक होगा लार्ज या फिर स्मॉल. बेसिकली जो बी होगा, जो हमारा प्रोड्यूस होगा, हमारा कैसा होगा, राउंड होगा, आर फॉर राउंड, बट ये इंटरमीडिएट साइज का होगा. मतलब ओके, इंटरमीडिएट साइज नहीं, बीच वाला साइज. अभी या तो पेन्स बहुत बड़े थे या तो बहुत छोटे थे, कोई बीच वाला साइज वाला तो था नहीं. बट हेयर द प्रोजेनी कम्स. तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हुआ. ओके. स्मॉल बी इज व्रिंकल होगा और स्मॉल साइज का होगा. एंड कैपिटल बी वो राउंड होगा और लार्ज साइज का होगा. तो हम लोग देखें तो जो राउंड है दैट इज़ डोमिनेंट कैरेक्टर और जो इंटरमीडिएट साइज है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है. ओके. Inheritance of two genes. Mendel also worked with and cross pea plant that differed into character as seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seeds of green color and wrinkled shape. Mendel found that the seed resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds. Here can you tell which of the character in the pairs yellow, green and round was dominant? ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. बेसिकली बहुत आसान है, ट्राई करिएगा ज़रूर. Thus yellow color was dominant over green and round shape and round dominant over wrinkle. ये आपको आंसर भी दे दिया. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plant. ये वो क्रॉसेस के बारे में बताए जा रहे हैं. ये बेसिकली डाईहाइब्रिड क्रॉस है विच यू हैव ऑल्सो स्टडी इन योर क्लास 10th. ये पनेट स्क्वायर है जो हम बनाते हैं. ओके. तो यहाँ पे राउंड येलो का रेशियो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, wrinkled yellow 3 है, wrinkled green 1 है. This ratio is important of 9:3:3:1. Now law of independent assortment. In a dihybrid cross, the phenotype round yellow, wrinkled yellow जो भी है ये 9:3:3:1 मैंने ऊपर में आपको बता दिया है. तो इसी के बारे में ये अपना बताया हुआ. तो based upon such observation on dihybrid cross between plants referring in
two traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel law of independent assortment. The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of character. मतलब डाईहाइब्रिड है दो ट्रेट वाला क्रॉस, एक आप रॉन्ड ले रहे हो, एक आप टॉल ले रहे हो, तो दो ट्रेट है। तो प्रपोज सेकेंड सेट ऑफ जनरल इन्होंने किया कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखेंगे, दैट वन पेयर ऑफ द ट्रेट इज इंडिपेंडेंट। कोई अगर टॉल है तो हो सकता है उसका ब्रिंकल आ जाए, कोई टॉल है तो हो सकता है उसका वो रॉन्ड आ जाए, एंड वाइस एंड वर्सा इज ऑल्सो कि टॉल के साथ डोमिनेंट रॉन्ड ही आ जाए। तो बेसिकली वन ट्रेड जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली डाईहाइब्रिड में देखा जाता है कि इंडिपेंडेंसी जो होती है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो ट्रेड है एक ट्रेड दूसरे ट्रेड से अलग होकर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिपेंडेंट स्क्वायर ये बेसिकली उसी का पूरा है। इट्स only explaining about the Punnett thing. For the chromosomal theory of inheritance, Mendel published his work on inheritance of character in 1865, but for several reasons it remains unrecognized till 1900. बेसिकली यहाँ से PYQ सब पूछे गए हुए इम्पोर्टेंट है ये। तो मेंडल का जो वर्क था वो बहुत टाइम तक अनरिकग्नाइज रहा। अब इसके पीछे 1900 उन्होंने पब्लिश किया था 1865 में, और 1900 दैट इज़ 35 ईयर्स तक कोई अता पता नहीं था। क्यों? फर्स्ट रीज़न, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, ओके। सेकेंड वॉज जीन्स ऑफ फैक्टर्स इन as stable and discrete unit that control the expression of traits and of the pair did not blend with each other. Which did not blend with each other was not accepted by his contemporary as an explanation for apparent continuous variation seen in nature. Researchers that control the traits of the pair of allele did not blend with each other were not accepted by his contemporaries. मतलब ये इनका जो था कि ब्लेंडिंग जो नहीं होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी करेंगे तो ये टॉल ही हमारा प्रोड्यूस करेगा, कोई इंटरमीडिएट साइज नहीं होगा, दैट उनके हिसाब से सही था। बट अभी हमने देखा कि डॉग फ्लावर में ये हमारा पिंक फ्लावर था, जबकि हमारा कोई तो पेरेंट्स तो था ही नहीं पिंक, तो कैसे हो गया? तो ब्लेंडिंग जो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, तो इनके खिलाफ ही बहुत लोग थे, बिकॉज अदर साइंटिस्ट भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ओके, तो थर्डली मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक, इन्होंने मैथमेटिक यूज़ किया, एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इन्होंने ही यूज़ किया, एंड कोई भी मैथ्स इन बायो वाज लाइक व्हाट इज़ दिस। Finally, though Mendel's work suggested that factors were discrete units, he could not provide any physical proof for existence of factors or what they were made of. Means कि genes discrete units हैं, पर ये प्रूफ उन्होंने नहीं दे पाया, कोई फिज़िकल प्रूफ था ही नहीं कि कैसे हुआ, तो इसी वजह, तो यानी इसमें कोई वो पॉइंट्स थे। नाउ लेट्स समराइज दिस। तो फर्स्ट पॉइंट, क्यों नहीं रिकग्निशन इनको मिल पाया? पहला, कम्युनिकेशन आसान होना चाहिए, इसी वजह से होना चाहिए। सेकंड, जीन्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट वाला जो पॉइंट था कि ये जो ब्लेंडिंग नहीं दिखाता, इनके हिसाब से ब्लेंडिंग नहीं होता, बट असली में ब्लेंडिंग हो भी सकता था, बट इन्होंने नहीं कहा। और
तीसरा math and bio, that was like what is this, and physical proof of gene. ये 4 पॉइंट थे. यहाँ से बने हुए हैं PYQ. In 1900 3 साइंटिस्ट डी वेरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार्क. कौन कौन थे? डी वेरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेस्मार्क. 3 साइंटिस्ट independently discovered Mendel's result on inheritance of the character. Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to the discovery of the structure in nucleus. In 1900, 3 scientists De Vries and Correns and von Tasmark independently discovered Mendel's result on the inheritance of characters. Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to discovery of the structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each division. These were called chromosomes, colored bodies, as they were visualized by staining. By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of the genes, and used chromosome movement to explain Mendel's law. So, 3 scientists, De Vries, Correns and von Tasmark, इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग जगहों पे इन्होंने एक इंडिपेंडेंटली मैनर पे इन्होंने रिज़ल्ट किया, मतलब रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल रिज़ल्ट. मतलब जो मेंडल लॉ जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था 1900 तक, अब उन्होंने इस पे काम किया और इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के रिज़ल्ट्स को. तो अब इन्होंने कैसे रिज़ल्ट को देखा? तो क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी हो चुकी थी कि अब साइंटिस्ट पहले जो नहीं मान रहे थे ऐसा नहीं होता है, डिस्क्रीट यूनिट नहीं होते हैं, बट वो अब मानने लगे क्योंकि यहाँ पे एडवांसमेंट माइक्रोस्कोपी हुई. तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया सेल डिवीज़न को. सेल डिवीज़न में उन्होंने नोटिस किया कि सेल डिवीज़न के जो पहले हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल होते हैं, फिर वो डिवाइड होते हैं, तो हमारा सेल डिवाइड होता है. हमने जो सेल डिवीज़न चैप्टर में जो पढ़ता है. अब व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम होता है जो कलर्ड बॉडीज़ होता है. बेसिकली क्रोमोसोम का नाम क्यों क्रोमोसोम? क्रोमोसोम मीन्स कलर्ड बॉडीज़. कलर्ड बॉडीज़ कैसे होंगे? जो हम स्टेन अगर हम करेंगे, अगर वो कलर्ड हो जाएंगे तो फिर वो कलर्ड बॉडीज़ का नाम दे दिया गया. 1902 में जो क्रोमोसोम का मूवमेंट पे काम किया गया, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम और जीन्स के बीच का रिलेशन देखा. नीचे वाले टेबल 5.3 में भी इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन है कि क्या similarity of chromosomes and genes are there in these, they have identified them. Recall that you have studied that behavior of chromosome during meiosis, equational division, and during meiosis, reduction division. The important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pair. The 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes.
होमोलोगस मतलब ये होमोलोगस कि इफ़ इन अ zygote there is a one chromosome of mother and one chromosome of father, and suppose it stands for eye color, तो आई कलर के जो होमोलोगस जो है वो होमोलोगस है, यानी आई कलर का ही जीन्स है। अब आई कलर के जीन्स में मे बी वन फादर इज़ हैविंग ऑफ ग्रीन आई एंड मदर इज़ हैविंग ब्लैक आई, तो दो अलील्स हैं बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो होमोलोगस लोकेशन होगा उसी पे हमारे अलील होंगे। इफ़ सपोज दिस इज़ ऑफ रेड कलर आई और ये हमारे पेयर्स में होंगे, ये हमारे फादर से आया, एंड सपोज मदर को ब्लू आई है एंड दिस इज़ मदर आई, ये आई का है, तो देन दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसी पे जो इंफॉर्मेशन होगा दैट इज़ लोकेशन, सपोज यहाँ पे है तो और ब्लू का यहाँ पे, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का ब्लू यहाँ पे है, तो होमोलोगस साइट्स पे ये प्रेजेंट होता है। और ये हमारे जो अलील भी हमारे पेयर्स में होंगे, जीन से उसमें होंगे पेयर्स, क्रोमोसोम भी पेयर्स में होंगे। यही था क्रोमोसोम और जीन्स में क्या सिमिलरिटी होती है। ये टेबल 5.3 में ये दोनों हमारे पेयर्स में होंगे, और ये हमारे जब गेमीट्स का जब फॉर्मेशन होता है, सपोज़ फादर में जब गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो इसमें भी आई कलर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आई कलर इसमें है। तो अब जब गेमीट बनेगा दिस विल बी वन गेमीट एंड सेकेंड दिस विल बी सेकेंड गेमीट। मदर में भी सिमिलर, इसमें वन गेमीट एंड दिस इज़ टू गेमीट। हो सकता है होमोलोगस क्रोमोसोम में अलील दोनों में डिफरेंट हो सकता है फादर में एक अलील रेड कलर का और दूसरा येलो कलर का हो, एंड कुछ भी सेम भी हो सकता। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर्स होंगे, सपोज कि एक सेल में तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स के जीन्स होंगे, तो सपोज हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, बहुत सारे टाइप्स के हमारे होंगे और वो हमारे इंडिपेंडेंटली हमारे होंगे। इट डजंट मीन कि कंपलसरी है कि आई कलर रेड के साथ ब्लैक हेयर ही जाएगा और वो आदमी वो गोरा ही होगा। इट डजंट मीन, इट कैन बी ब्लैक हेयर कलर, वाइट पीपल, ब्लू आइज़, और वाइट पीपल, वाइट हेयर एंड ब्लैक आइज, कुछ भी इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें असॉर्टमेंट की तरह होंगी। इट इज़ नॉट फिक्स कि ऐसे ही सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेट किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने पढ़ के आया। सो दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट 5.3. ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ meiosis 1, the two chromosome pair can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosome of 4 different colors in the left and right column. In the left column, possibility 1, orange and green is segregating together. But in the right hand column, possibility 2, the orange is segregating with the red chromosome. तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ जो ऑरेंज और येलो है दैट इज़ होमोलोगस, कि दोनों का सेम ही साइज़ है, और जो रेड और ग्रीन है दैट इज़ ऑल्सो होमोलोगस। बट पहले पॉसिबिलिटी में क्या है कि जो ऑरेंज है वो ग्रीन के साथ सेग्रीगेट हो रहा है, कि अगर ऑरेंज और येलो सपोज दे आर द ट्रेट्स ऑफ द हेयर कलर और ग्रीन और रेड आई कलर है, तो ऑफकोर्स एक आदमी में एक गैमेट में तो एक ही सेग्रीगेट होगा, या तो ऑरेंज होगा या तो येलो होगा एज अ हेयर कलर, और रेड और ग्रीन एज अ आई कलर को एक गैमेट में जाएगा। सपोज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इन वन गैमेट इज रेड orange and the is and with it is along with the green, and in the possibility 2 it is segregating with the orange
with the red and in first it is segregating with the green. तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि सेग्रीगेशन तो हो रहा है, या तो वो दूसरे ट्रेड के उसी के साथ है या तो फिर उसके साथ नहीं है. एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम लोग लिंकेज की तरफ. लिंकेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो Sutton and Bovary argued that the pairing and separation Sutton and Bovary argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carry. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance. तो ये पैराग्राफ में बेसिकली ये कह रहे हैं सटन और बोवरी जो थे उन्होंने कि मतलब क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सेग्रीगेट होंगे, मतलब कि वो हमारे क्रोमोसोम हमारे सेग्रीगेट होंगे, हमारे कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे. ये जो क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स की जो भी थी सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स से कैरी का जो सेग्रीगेशन था, पेयरिंग होगा, सेग्रीगेट होगा, ये जो सटन बोवरी बोले. और जो सटन जो थे वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड 2025 का ही सवाल भी है आया हुआ कि किसने यूनाइटेड किया था. सटन ने किया था. बोवरी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था कि यूनिफिकेशन कौन किया था. यूनिफिकेशन दोनों ने आर्ग्यू किया, यस इट हैपेंस, द क्रोमोसोमल पेयर्स होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, बट सटन ही जो थे जो उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडेलियन लॉ के साथ इन्होंने मर्ज किया. अब नाउ वी विल कम टू लिंकेज. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. तो देखो, फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय Thomas Hunt Morgan and his colleagues lead to discovery of the basis of the variation that sexual reproduction produce. Morgan worked with the tiny fruit flies Drosophila melanogaster, which were found very suitable for such study. They could be drawn on simple synthetic medium in the laboratory. They complete their life cycle in 2 weeks. Very important. And a single mating could produce a large progeny. ये सब एडवांटेजेस है क्यों इन सबको चूज़ किया गया. एंड और देयर वाज अ क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्स मेल एंड फीमेल. ऑल्सो इट हैज़ मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद अ लो पावर माइक्रोस्कोप. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हमने ड्रोसोफिला ही क्यों चूज़ किया. ये बहुत बड़े सवाल आए हुए हैं इन बोथ नीट एंड बोट. फर्स्ट वॉज दैट छोटे छोटे लाइफ स्पैन होते हैं, 2 वीक्स का ही लाइफ स्पैन होता है और बहुत सारे वेरिएशन होता है. और एक सिंगल प्रोजेनी एक सिंगल मीटिंग बहुत सारे हमारे प्रोजेनी करेगा. दैट इज़ ऑल्सो कि हमको ज़्यादा नहीं, हमको एक सिंगल मीटिंग करके हमारे बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाएंगे और हम लोग उसमें जो बहुत सारे कैरेक्टर्स आप देख सकेंगे विद अ लो पावर माइक्रोस्कोप. ये बहुत एडवांटेजेस थे. अब आते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सारा तो बस बोली बातें थी. अभी तक कोई वेरिफिकेशन आया नहीं था. ये सब वेरिफिकेशन हमारे किसने किए थे, वो थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कलीग्स ने. बेसिकली हमने अभी जो इस चैप्टर में अभी साइंटिस्ट में मेंडल पढ़े और फिर पोनेट सिग्नल्ड के बारे में पढ़े. फिर हमारे जो 3 साइंटिस्ट जो इंडिपेंडेंटली मेंडल के 1900 में इन्होंने रीडिस्कवरी किया. फिर रीडिस्कवरी करने के बाद हमारे सटन बोवरी क्रोमोसोमल थ्योरी लेके आए. अब इन सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी मेंडल का इन्होंने एक कलेक्शन बना के किया और अब उनके बाद एक इसका वेरिफिकेशन करें थॉमस एंड मॉर्गन. एंड नाउ मूविंग टू लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. So basically, Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. The crosses were similar to the dihybrid cross carried by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow body, white eye female, very important, to brown body,
red eye male and intercrossed F1. He observed that the two genes did not segregate independently and ratio deviated this. अभी हमने पढ़ा था पनेट स्क्वायर में जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उसमें 9:3:3:1 का हमारा फिनोटिपिक आया था. दिस इज नॉट जीनोटिपिक रेशियो, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो, इम्पॉर्टेंट है. और जो जब थॉमस एंड मॉर्गन ने इसका देखा तो उन्होंने देखा कि नो दिस डेविएटेड. कब? जब इन्होंने ड्रोसोफिला में देखा. ड्रोसोफिला की जो फीमेल थी वो बेसिकली रिसेसिव कैरेक्टर्स की थी, वाइट आई और येलो बॉडी थी, और जो मेल थे उनके रेड आई और ब्राउन बॉडी थी. बेसिकली अगर ये मेल है, दिस इज मेल, एंड फीमेल, दिस वन वाइट आई फीमेल को थी एंड रेड आई मेल को था. ये हमारा मेल था, ये हमारी फीमेल थी. बेसिकली ये था. और इसका जो हमने क्रॉसिंग किया तो ये हमारा रेशियो ये मिलना चाहिए, बट हमें ये रेशियो मिला ही नहीं. तो कुछ तो था गड़बड़ यहाँ पे. नाउ मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. वेरी इंपॉर्टेंट. इनको क्या पता था कि एक्स क्रोमोसोम पे हमारे जीन्स लोकेटेड, एंड सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स आर डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर compared to the non-parental type. Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes termed as linkage. To describe this physical association known as recombination, to describe the generation of non-parental recombination. Morgan and his group also found that even when genes were found on the same chromosome, some genes were very tightly linked, shows very low recombination, while others were loosely linked. For example, found that genes, important lines are starting, that genes white and yellow were tightly linked, show only 1.3% recombination, while white and miniature 37.2% recombination. ये सब डेटा याद करने की हैं, तो याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस इज आस्क्ड इन इनडायरेक्ट वे इन 2016 एंड बोर्ड्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार. His student Alfred Sternhardt used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and map their position. Very important. Alfred Sternhardt का भी यहाँ पे आ गया कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन था. इन्होंने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है जो जीन्स के लिए, मतलब बेसिकली मैप कैसे कम्यूल करते कि जैसे यहाँ पे ऐसे मैपिंग कर रहा है, जो कि बहुत बार हमारे स्कूल में भी ये सब सिखाए जाते हैं, फिर कोचिंग्स में, कि अगर मान लो ए बी का इतना डिस्टेंस है और ये सी का इतना डी का है, ये सब डिस्टेंस है. तो ये बेसिकली मैपिंग उन्होंने किया, और वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, वो सभी हम लोग यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें. तो इन्होंने मैपिंग किया. मैपिंग किस बेसिस पे होती है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन यानी नॉन पेरेंटल टाइप, जो मतलब पेरेंटल में हुए नहीं है. रिकॉम्बिनेशन यानी जो एक नया कॉम्बिनेशन, री प्लस कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन जो नया बना है उसके बेसिस पे कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे बनी है, उसके बेसिस पे इन्होंने किया. वेरी इम्पोर्टेंट कि इन्होंने रिकॉम्बिनेशन जो था, रिकॉम्बिनेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैपिंग किया. किन्होंने किया? अल्फ्रेड स्टर्नहर्ट ने. ठीक है. और यही आज हम लोग जेनेटिक्स मैप के बारे में पढ़ते हैं. ये जेनेटिक मैप ऐसा वैसा नहीं है, आज हम लोग बहुत हम यूज़ करते हैं. इस वन ऑफ द यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, आप देख सकते हैं, जो हम बाद में इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे.
ये डायग्राम है, इट इज़ इम्पोर्टेंट डायग्राम। ये वही पैराग्राफ का यही वाले ऊपर लिंकेज का यही एक्सप्लेनेशन है। बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जो वाई है वो माई येलो कलर पे स्टैंड है, वो डबल फॉर वाइट है। ये बेसिकली फ़ीमेल का मैंने ऊपर में पढ़ा था, जो फीमेल थी वो येलो और वाइट कलर की थी, और जो मेल था वो कैसा था, रेड कलर का आई था और ब्राउन कलर की बॉडी थी। ओके, तो मैं एक बार बना भी देती हूँ। सपोज़ आई डोंट हैव ब्राउन कलर, तो कोई नहीं, ब्राउन कलर ये मान लेते हैं, ये तो रेड हो गया। आई डोंट हैव ब्राउन कलर, तो मैं ये ब्राउन कलर एजम्पशन ले रही हूँ। और फीमेल ये है येलो कलर की, इसको वाइट कलर का आई था, फीमेल को आई बन गया, और मेल को रेड कलर का आई था। बेसिकली यही थी चीज़ें इसमें। तो जो इसका जो आई कलर है वो वाइट था और बॉडी कलर येलो था, इसका रेड और इसका क्या था, बॉडी कलर ब्राउन। तो इसी के बारे में बताया गया, ये एक है। और एक था विंग्स के बारे में। बेसिकली जो विंग्स है, अगर ड्रोसोफिला है सपोज, इसका जो विंग्स है, मैं कलर ले ही लेती हूँ। तो ये मेल है, थोड़ा ऑकवर्ड बन रहा है बट इट्स ओके। ये इसका विंग्स है, थोड़ा हॉरर जैसा लग रहा है। खैर, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो विंग्स है और विंग्स जो मतलब कि जो विंग्स है, और मतलब इसका विंग या तो मिनिएचर होगा या तो फिर अच्छा सा होगा, एक या तो मिनिएचर होगा तो लॉन्ग होगा, वाइल्ड टाइप, और वाइट और रेड इसका आइज़ के बारे में। ये बेसिकली इसके आइज़ के बारे में है प्लस विंग्स के बारे में है। और ये इसका किसके बारे में क्रॉस है, इसके आइज़ के बारे में है प्लस स्किन के बारे में। तो स्किन कलर वाला ना ज़्यादा अच्छा लिंकेज दिखाता है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट आप देख सकते हैं कि मैं ये इनोटेशन हटा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका रिकॉम्बिनेंट इसलिए कम है क्योंकि दो जीन में पास पास दोनों जीन है। ये दो जो जीन है बहुत पास पास में, और ये देखिए दो जीन बहुत दूर दूर है, इससे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा। यानी रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी लिंकेज कम होगा। यही रिलेशन है, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, दूर डिस्टेंस है इसमें, तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा हो गए, लिंकेज कम हो गया। मतलब लिंकेज यानी कितना टाइटली बॉन्ड है, लिंकेज तो इसमें भी लिंकेज है, अगर कोई इतना दूर भी जीने इतना दूर भी, इसमें भी लिंकेज है, बट टाइटली लिंकेज इसमें नहीं है इस बी केस में। और ए केस में वाइस एंड वर्स, उसमें उल्टा है जस्ट। और देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कुछ नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो एक जीन की वजह से नहीं, वो बहुत सारे जीन की वजह से। अभी हमने मल्टीपल एलेलिज्म पढ़ा था। मल्टीपल एलेलिज्म में एक देखिए मल्टीपल एलेलिज्म, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें बताती हूँ। MA फॉर मल्टीपल एलेलिज्म एंड PI फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, कन्फ्यूजन पॉइंट बन सकता है। बेसिकली इसमें जो जीन्स होते हैं ये एक ही होता है, इसमें मेनी होता है। तो मल्टीपल एलेलिज्म में चीज़ें क्या थी, इसके जीन एक थे पर इसके एलील अलग थे। कोई हो सकता I था, कोई IA था, कोई IB था, बट इसमें होगा कि कोई
सपोज ए है, ए जीन है, कोई बी जीन है, कोई सी जीन है, इसके एलील भी हो सकते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी बहुत सारे जो कॉमन करें, ठीक है। जैसे हमारा इसका एग्जांपल होता है हमारा स्किन कलर, हमारा आई कलर, ये सब का इफेक्ट है। तो ये है मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज स्टेट दैट हैड डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म्स द फ्लावर which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. Basically मेंडल क्या कहे थे कि मेंडल जो लिए थे वो तो एकदम अपोजिट रेट का था, जैसे टॉल हो गया तो एक ड्रॉप होगा, मतलब जो ग्रेडियंट उन्होंने कभी लिया ही नहीं, उन्होंने जस्ट एक अपोजिट रेट ले दिया। बट हमारे नेचर में भाई ग्रेडियंट भी, कोई आदमी ऐसा नहीं कि आदमी कोई बहुत टॉल होता है, कोई ड्रॉप होता है, इंटरमीडिएट हाइट्स होते हैं, कोई मे बी 161 हो, 162 होगा, 157 होगा, 148 होगा, कोई 171 होगा, एंड सो ऑन, कितनी भी हाइट हो सकती है। देयर इज सो मच ग्रेडियंट, बट ऐसा मेंडल ने लिया ही नहीं। For example, in human we don't just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible height. Yeah, this is what I have explained actually. Such traits are generally controlled by 3 or more genes, and these are polyny. मतलब कितने से 3 होंगे, 3 से ज़्यादा ही होंगे। Besides the multiple genes, polygyny inheritance also takes into account the influence of the environment. Environment से भी हमारे असर पड़ता है, मतलब कि आप देख ही सकते हो इंडिया में ग्रेडियंसी की वजह से कोई लोग, मतलब कोई स्टेट्स के ज़्यादा लंबे लोग होते हैं। आई हैव नॉट नॉलेज दैट मच, बट येस देयर सम स्टेट्स कि कहीं के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, कहीं के लोग थोड़े, उनका फेस कलर अलग होता है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द कि नहीं जीन्स ही उनके ऐसे हैं। हो सकता है जीन्स वैसे ना भी, हो सकता है उनका जीन गोरा प्रोड्यूस करे, मे बी द स्किन विच दे आर हैविंग दे माइट हैव बेटर जीन्स, कि हो सकता है जिनके लोग जैसे वो दिख रहे हो वैसे उनके जीन्स ना, बट टेम्परेचर इन्वायरमेंट बहुत गर्मी पड़ रहा है तो उसकी वजह से स्किन पे इफेक्ट पड़ा। जैसे अमेरिकन्स जो बहुत गोरे होते हैं, वो अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, इतने टैन हो जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी ह्यूमिडिटी होगी, they will got tan, and of course their skin color will become dull, and when they will of course again go back to the America, तो वो अपने कलर देखेंगे तो वो बोलेंगे वाओ हाउ दिस दिस हैपन, ठीक है अभी तो हम लोग काले दिख रहे थे, अब हम कैसे गोरे हुए। वो जीन्स से इन्वायरमेंट का भी असर पड़ सकता है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लास एग्जाम्पल। ओके, तो इसी के बारे में टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन्स A, B, C कंट्रोल जीन कलर ह्यूमन डोमिनेंसी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी तो आपके रिसेसिव है जो डार्क कलर है। बेसिकली ये जो स्मॉल है वो डार्क कलर है, और जो कैपिटल है वो मतलब लाइट कलर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये आपके डार्केस्ट होंगे, और लाइटेस्ट कलर स्मॉल वाले होंगे, ठीक है। और इसके बीच में जो होंगे वो इंटरमीडिएट्स होंगे, ओके। और इसमें ये भी है कि एक डोमिनेंसी नहीं कि अगर मान लो कैपिटल ए है, मतलब जो ग्रेडियंस है मतलब सबके एलील का इफ़ेक्ट बन के ये इफ़ेक्ट बनता है। ऐसा नहीं कि ये हमारा डार्क है तो डार्क डोमिनेंट हो गया, ये भी डार्क डोमिनेंट हो गया, ये भी डार्क डोमिनेंट हो गया, जैसे आदमी डार्क हो गया, नो 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 नो, इट डजंट। सबका इफ़ेक्ट मिला के ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये लाइट कलर का आदमी होगा, मतलब नॉट एज अ फुल प्योर लाइट कलर, बट हाँ ये इसके वजह से तो इसका भी इफेक्ट ऐड होगा, सबका इफेक्ट ऐड करके लाइट हो, सबका इफेक्ट ऐड होता है, ओके। और प्लायोट्रॉपी का वही एग्जांपल था जो स्टार्च ग्रीन का था। प्लायोट्रॉपी व्हाट इट मीन्स, प्लायोट्रॉपी एक जीन जो एक से ज़्यादा जीन का इफ़ेक्ट कंट्रोल करता है। जैसे अभी हम कुछ देर पहले हमने एक स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस का एग्जांपल पढ़े थे BB, तो ये हम एक हमारा इंटरमीडिएट साइज़ का होता है,
मीडियम साइज़ का होगा, पर ये राउंड होगा, राउंड ही होगा। तो बी जो जीन्स है वो हमारा एक राउंड को भी गवर्निंग कर रहा है, और एक हमारा व्रिंकल होगा या फिर राउंड होगा इसको भी कर रहा है, और एक ये भी कर रहा है, और एक इसको भी कर रहा है। व्रिंकल होगा, राउंड होगा, और दूसरा कि स्टार्च ग्रेन का लार्ज होगा या तो स्मॉल होगा। इस चीज़ को यानी एक जीन जब दो चीज़ों को करेगा। तो वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल phenotype or trait. There are, however, instances when a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. In a single gene, multiple phenotype. Such a gene is called pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway which contribute to a different phenotype. ओके, इसका एक एग्जांपल है मेटाबॉलिक पाथवे का भी होता है, जैसे अभी पढ़ने वाले important pleiotropi. Well, phenylketonuria. An example of this is phenylketonuria, which occurs in human. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation of and reduction in hair and skin pigment. देखो, what is happening over here is एक डिजीज़ होता है फिनाइलकेटोनुरिया। किस में होता है? आदमी में होता है, ह्यूमंस में होता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे में फिनाइलैलानिन हाइड्रोक्साइलेज एक एंजाइम एज अ मेटाबॉलिक का हमारे पाथवे में हमारा प्रोड्यूस होता है। बट व्हाट इट हैपन्स कि ये फिनाइलैलानिन हाइड्रोक्साइलेज जो एंजाइम है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है। वो म्यूटेशन की वजह से हम पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? हमारा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, हेयर फॉल, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके बारे में हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट sex determination. In this video we only cover sex determination और mutation अलग वीडियो में with disease लेके आऊँगी because it's very important diseases. Okay, आधा घंटे के अंदर हो जाएगा। ये only 5 to 10 minutes I will take this cover. तो बेसिकली यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन आई एम ओनली गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस में मेल है, फीमेल है, या फिगर में भी लिखा हुआ XY है, ये XX है। ओके, तो बेसिकली हेट्रोजाइगस कौन है? मेल है। सेक्स डिटर्मिनेंट कौन होगा? मेल होगा, क्योंकि फीमेल तो बस एक्स ही प्रोड्यूस करेगी। फीमेल तो सिर्फ एक्स ही प्रोड्यूस कर सकेगी, उसके पास नहीं डिसाइड होगा कि उसकी जो प्रोजेनी होगी, जो उसके जो बच्चे होंगे वो मेल होंगे फीमेल, क्योंकि वो तो बस एक्स ही प्रोड्यूस करेगी। कि मेल प्रोजेनी होगा XY से, और जो Y होगा उसके फादर से ही आ सकता है। और जो अगर डॉटर होगी तो वो XX होगी, जो एक इसके X तो मदर से आएगा और एक X के फादर से आएगा। तो जो डिटरमाइन करेगा सिर्फ उसे इसका फादर है, जो हम बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं। इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अब आता है यहाँ पे हमारा ड्रोसोफिला के बारे में भी है। तो इन ड्रोसोफिला ऑल्सो सेम टाइप हैपन। तो ड्रोसोफिला में जो बेसिकली जो ये हमारा जो बी है वो हमारा ड्रोसोफिला का केस है। ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो साइज़ में बड़ी होती है। ये फीमेल है, साइज़ में बड़ी है, ये छोटू सा है, ये मेल है।
मेल XY प्रोड्यूस करेगा और फीमेल XY प्रोड्यूस करेगी। एक हमारा और आता है ग्रास होपर। ग्रास होपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रास होपर एक्सो टाइप का होता है। यानी ग्रास होपर की अगर मैं बातें करूँ, एक्सो टाइप यानी कि जो मेल होगा और एक फीमेल होगी, फीमेल को तो XX ही होगा और इसमें X होगा, यानी इसमें एक X होगा और एक गायब होगा। यानी सपोज़ कि जैसे हमें 46 क्रोमोसोम है, वैसे सपोज़ इनमें भी है, सपोज ऐसे इनमें कम होता है क्रोमोसोम, बट इट इज़ आउट ऑफ NCERT, सो आई एम नॉट टेलिंग, बट येस इट इज़ नॉट हैविंग 46 क्रोमोसोम। आई एम ओनली टेलिंग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। NCERT में नहीं, सब वैल्यू नहीं मेंशन करूँगी, NCERT से स्टिक रहना, इट्स बेटर टू। ओके, तो फीमेल है तो फीमेल में XX है। सपोज़ फीमेल के पास 46 है तो मेल के पास 45 होगा। इट्स नॉट कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नहीं है। इट्स नॉट कि क्रोमोसोम है, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ज़ीरो। ओके, बहुत कॉमन कन्फ्यूजन है, पीपल थिंक दैट नो, पर बर्ड्स अपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या देखा, मेल ही डिसाइड करेगा कि प्रोजेनी का जेंडर क्या होगा। सॉरी, फीमेल में क्या होगा, बर्ड्स में जो डिपेंड करेगा वो फीमेल पे डिपेंड करेगा। फीमेल हैव ZW और मेल हैव ZZ। बहुत बार नीट में आया हुआ सवाल है कि बर्ड्स में हेट्रोजाइगोट कौन दिखाएगा, तो फीमेल दिखाएगी। ओके, तो ये पढ़ने की है। ह्यूमन का मैंने बातें बता दिया। इम्पॉर्टेंट है हनी बी। हनी बी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हनी बी मैं ये ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, ये इसी ऐसे सवाल आते हैं। तो फीमेल को 32 क्रोमोसोम है, मेल को 16 है, यानी इनको हाफ क्रोमोसोम है। ओके, इनके कंपैरिजन में इनको हाफ क्रोमोसोम है, तो गेमेट बनेगा। ये तो 2n है, ठीक है, 2n है, ये n होगा तो, और ये n बनेगा और ये लेट मी एक्सप्लेन, मैं अपना डायग्राम बनाती हूँ। तो सपोज़ ये फीमेल है एंड दिस इज़ मेल। फीमेल को 32 है और मेल को 16 है। गेमेट्स बनेंगे, 16 का बनेगा, राइट, और ये भी आपका 16 का ही बनेगा। बट ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। ओके, माइटोसिस करेगा, ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। इम्पॉर्टेंट है, अंतर पूछे जाते हैं। ये मियोसिस करता है, ये माइटोसिस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड ही होता है मेल, क्योंकि मेल जो फॉर्म होता है वो अनफर्टिलाइज बनता है। अगर ये और ये बन जाता है तो ये आपकी फीमेल बनेगी। अब जो ये बच गया, ये इसका तो कोई फर्टिलाइजेशन गेमीट का हुआ ही नहीं, ये आपका मेल में बदल जाएगा। जो अनफर्टिलाइज होगा वो आपका मेल में होगा, और फीमेल में हो सकती है या तो वर्कर बी होगी या फिर क्वीन होगी। क्वीन और वर्कर बी में एक ही चीज़ का अंतर होता है कि जो नेक्टर जो एज ए बच्चे को पिलाया जाता है, वो अगर मान लो ज़्यादा अच्छा है तब तो तो वो क्वीन होगी। हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार इसका पैराग्राफ से क्लैरिटी के लिए। द सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव्स एंड ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग डेवलप्स एज अ फीमेल क्वीन ऑफ वर्कर। अभी मैंने बताया है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्वीन बनेगी तो वर्कर बनेगी। एंड एन अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ मेल ड्रोन बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस यानी माइटोसिस। माइटोसिस में वो बनेगा कि एक एज अ माइटोसिस, ऐसे तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनता है, बट
एक न्यू मेल जो एक हैप्लॉइड से बनेगा। तो बेसिकली एक बिना कोई फर्टिलाइजेशन किए हुए एक हैप्लॉइड ही पूरा करेगा तो वो माइटोसिस से बनेगा, दैट इज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। दिस मीन दैट मेल्स हैव द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम दैन दैट ऑफ अ फीमेल. The female are diploid 32 chromosomes and male are haploid, that is 16 chromosomes. This is called haplodiploid sex determination and has special characteristic feature such as male produce sperm by mitosis. They do not have father and thus cannot have sons. मतलब कि जो लड़का होता है ना तो उसको कोई फादर होगा, ओके, और ना तो कोई बेटा होगा, but yes, it will have grandfather and have grandsons. अब ये लाइन क्यों लिखा गया मैं बता देती क्लैरिटी के लिए ही. सपोज ये मेल है एंड female is 32, 16. ये इसके साथ होगा तो ये 32 हेंस फीमेल प्रोजेनी बनेगी, सॉरी फीमेल बनेगी, ठीक है. और ये जो अनफर्टिलाइज बनेगा वो आपका मेल बन जाएगा. ये मेल को क्या कोई फादर है? नहीं, ये तो ऑलरेडी एक गैमीट था जो कि एक फीमेल से बना था, इसको ना कोई फादर. क्या इसका कोई सन होगा? नहीं, इसका कोई सन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 16 है. अगर मान इसी का अब ये बड़ा हुआ तो ये एक फीमेल के साथ करेगा तो इसको तो फिर एक डॉटर हो जाएगी ना. बट येस, इट विल हैव अ ग्रैंडसन. ओके, so in the next video we will cover up mutations, genetic disorder, and hence we will complete this chapter. Thank you.